Good morning, ma'am. Vande Mataram, ma'am. Vande Mataram, madam. Thank you, ma'am. Today we are going to study subject maths, in which we will be studying an interesting topic. For that, we are going to play a guessing game again, as we had already played in the last class. Okay? Are you ready for it? Yes, ma'am. The subject in which you do calculations as well as you do addition, subtractions, and including all the other profits and loss types of questions are known as by which name? Maths. Very good. And when we talk about drawing, music, dance, we talk about which subject? Yes, you. Art. Very good. And when we combine both these names, what we form in a sentence or in a word formation? Who is going to reply? Yes, you. Math plus art. Very nice. Anyone else? Ma'am. Yes, you. Maths in arts. Excellent. So today's our topic is maths in arts. We are going to study about maths, which is already involved in Arts. As we already know that maths is such a subject which gets involved or which is considered in each and all subjects, but as well as we also know, we will be focusing here in arts subject mainly over here. Okay? Are you ready for it? Yes, ma'am. Okay. As we had already discussed about the topic, but we are going to discuss in our class today maths in Arts. So from the diagrams, as it is already cleared on the blackboard, you can see there are various sections which is also considered as a various streams in one word in your higher education system. Okay? Yes, ma'am. So very first, we are going to see how maths is involved in our daily life as well as how it is involved mainly in maths subject. Without maths, is art is possible according to you? No, ma'am. Is anyone? Group answering is not allowed. Yes. Go ahead. मैम बिकॉज क्योंकि हम लोग जितने भी शेप्स देखते हैं अपनी रेगुलर डेली लाइफ में, कोई भी चीज़ है जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच हो गया, वो सब एक शेप पर डिपेंडेंट है. Very good. Excellent reply. बैठ जाइए. So here we are going to see how maths is involved in our daily life as well as how maths is involved mainly in arts. Also we will be seeing about the section how maths gets totally involved in arts by various forms, not only through pictures, diagrams, skeletons, body structures, measurements. We will be seeing it in a detailed form over here. Okay? So the very first is how is dance related to maths? As we already know, or if we are asking to anyone how we consider if it is a dance form or a dance, it is already involved in maths or not. Some of you will be saying as it is not. Why? Because we have never seen maths involving in dance. But is it true? No मैम. Why so? Can any of you explain it? Yes, you. Go ahead. Ma'am, In your own words, you can explain it. Even in Hindi also, you can explain it in detail. If you are eager to explain it. Go ahead. मैम अगर हम लोग डांस करते हैं तो बाई चांस अगर हम लोग को बैक फ्लिप या फिर फ्रंट फ्लिप मारना होता है डांस में, तो उसके हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है कि अगर इतने फोर्स से अगर हम लोग अपने बॉडी का अधिक प्रेस करेंगे तभी हम लोग जाके खड़े हो सकते हैं अपना बैक फ्लिप में. वही Very nice. So, as that students have explained it in a detail, that means we had as considered dance requires the use of some mathematical terms and topics, especially when dealing with music and rhythm. When we are talking about music, songs, in that also directly or indirectly, maths is totally involved. If any singer is singing any song, it sounds as in a sweet form. Yes. But if we are singing the same song in our own voice, how it sounds us to us? अगर किसी सिंगर ने कोई स्वीट वाला या मेलोडियस गाना गाया तो वो आपको कैसा लगता है? सुनने में सुरीला लगता है, लेकिन वही सॉन्ग
जस्ट एक लाइन, तो वो सेम वर्जन आएगा दोनों जन का? नो क्यों? मैम वॉइस वॉइस का जो टोन है वो डिफरेंट होगा, उसका जो पिच है वो डिफरेंट होगा, उसका जो मेलोडियस है वो डिफरेंस होगा। यानी कि सिंगर ने गाया तो उसे पता है कितने पिच पे कितनी आलाप लेनी है, कितने पिच पे कितना लो बॉटम जाना है, कितने पिच पे उसको मेंटेन करना है उसका रिदम। बट जब हमने उसी सॉन्ग को गाया तो क्या हुआ? हम लोग ने कोई पिच नहीं पकड़ी, कोई पिच नहीं पकड़ी, कोई रिदम नहीं पकड़ा, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस वर्डिंग अगर याद हो गया तो हमें सॉन्ग आ गया। मोस्टली यही होता है ना हमारे साथ। So music and rhythm. In music and rhythm also math is totally involved. Without music and rhythm, if math is not involved in it, then we will be not able to hear a melodious sound or melodious music. Okay? Shapes. In songs also or in dance also, we see different shapes, different versions, different type of songs. Isn't it? आप सब एक ही टाइप का सॉन्ग हर सिंगर के माउथ से सुनते हैं। अरिजीत सिंह की बात की जाए तो उनका सॉन्ग और नेहा कक्कर के सॉन्ग की बात की जाए, उनका सॉन्ग, दोनों जन का सॉन्ग सुपरहिट होता है। नाम तो सुना ही होगा आपने। दोनों जन का सॉन्ग एक ही जैसा होता है? नो मैम, डिफरेंस होता है दोनों में। तो एक्सप्लेन करना चाहेगा आपके वर्ड्स में, ट्राई करना चाहेगा? मेजर डिफरेंस तो एक मेल वर्जन है, फीमेल वर्जन। ट्राई करो। यस यू। मैम फीमेल में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मेल में एम्पलीट्यूड होती है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? यस, इनकी वॉइस भी अलग अलग। नाइस। एनीवन एल्स? ओके, सो बोथ आंसर्स आर एब्सोल्युटली correct over here. As music and rhythm shapes movements executed, if we are dancing, then we dance at a particular or at a sticky place. अगर हम डांस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे डांस करना है, म्यूजिक ऑन कर दिया किसी ने, बट मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी ही डांस कर सकती हूँ। अगर मैं इसी पोजीशन में स्टेबल की स्टेबल ही हो तो इसे डांसिंग बोला जाएगा? डांसिंग करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? हाथ को मुद्रा, पोजीशंस चेंज करने पड़ेंगे, फेस के रिएक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, हैंड के इन्वॉल्वमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेग को अप एंड डाउन करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो हमने किया है, क्या हुआ? स्टेप्स फॉलो हो रहा है। स्टेप्स फॉलो हो रहा है यानी कि वहाँ पे नंबर आ रहा है। नंबर आ रहा है यानी कि क्या आ रहा है? वेरी गुड। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिमेट्री, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, अगर मुझे आगे के साइड मूव करना है, सॉन्ग में 2 बार आगे के साइड मूव करने का बीट है, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ जा रही हूँ? सॉन्ग में जब भी बीट आ रहा है तो आगे जा रही हूँ। इन द सेम वे अगर सॉन्ग में पीछे का बीट है तो मैं 2 बार मेरे पैर कहाँ ले रही हूँ? पीछे ले रही हूँ। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, दोनों के दोनों फॉलो हो रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डांस में मैथ्स इन्वॉल्व होता ही होता है। अब आप में से कोई आपके वर्डिंग में एक्सप्लेन करना चाहेगा इसे? यस यू। मैम अगर हम डांस करते हैं स्टेप लेते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे। वेरी गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन। एनीवन एल्स? यस यू। हम अगर हम लोग कभी भी डांस करते हैं तो उसकी जब बीट पकड़नी होती है तो स्टार्टिंग में हमको 1 2 3 4 करके हम लोग को सिखाया जाता है, और जब हम लोग वो सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग जो स्टेप करते हैं वो अपने मन में काम करते हैं, लेकिन करते जरूर। वेरी गुड, नाइस। अगर आप कोई भी क्लासिकल सॉन्ग सीख रहे हो और क्लासिकल डांस सीख रहे हो तो व्हाट दे यूज्ड टू से? ता थई ता ता थई ता, isn't it? They used to follow this rhythm so that the students can get it easily and they can capture the main topic easily without any other kind of disturbance. Okay? Same चीज क्या हो रहा है यहाँ पे? भले ही वो मेलोडियस हो, नॉर्मल हो, बॉलीवुड हो, क्लासिकल हो, रिलीजियस हो, अदर इट्स सॉन्ग और म्यूजिक, दोनों में ही मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो ही हो रहा है। ओके? विदाउट मैथ्स अगर हम सॉन्ग लिख के उसको सॉन्ग गाने का ट्राई कर रहे हैं तो पॉसिबल होगा? अगर हमने सिर्फ लिख दिया और उसे जस्ट ऐसे ही मर्मराइज कर रहे हैं, दैट मींस वो सॉन्ग कंसीडर किया जाएगा? उसे सॉन्ग के तौर पे कब कंसीडर करेंगे? जब उसमें कुछ बीट डाला जाएगा, जब उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किया जाएगा बैकग्राउंड में, जब उसे क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जब उसे पुल आउट किया जाएगा कि वो क्या हो, जैसा बीट है उस बीट के अकॉर्डिंग में उसका साउंड भी हो। ये सारी चीज को जब
something. Okay. Yes, ma'am. Normally अगर मैथ्स के लैंग्वेज में लिया जाए तो क्या है? 0. By raising your hand. Who is replying? Yes, you. Yes, yes. Ma'am, circle. Okay. Anything else? Circle is right. Else than circle? Yes, you last bench. 0. Very good. Next. Yes, you. शून्य. Remains the same. 0 in Hindi it is known as शून्य. Okay. Next. Yes, you. Very nice. It is unique answer. O. Next. Yes, you. Gola. Gola. Same. Circle. In Hindi it is known as gola. Gola. Is it necessary to write it on a blackboard? No, No, ma'am. ma'am. Okay. Next. Anyone else? Yes. And ring. Yeah. Ring. Nice. Yes. Last one. Very good. Round. Next. Very nice. Round, that means clock 2 will be included in it. Okay. As we have already seen, what we have seen? Clock is also Round. in a form of circle. Round, that means it's already in a form of round circle. Circle. Its original name 0. In mathematical form Shunya, which is also known as 0 in English as well as in Hindi. Now alphabetical order. O is known as same and ring. Last one. Still you are missing one word which is also used in math Diameter. regarding this. Not diameter. Diameter, that means when you follow this line from that line till the end of both the chords, then it is known as diameter. Okay, as ring is also known as in the form of this. Still one point was missing, which is known as sphere. Sphere. Also, when we put small dot, Dot. then this dot is known as by which name in mathematical form? Circle. Point. Very nice. It is known as by the name of Point. Also, if we are using same point in a decimal form, then it is known as by which name? I had already answered your question within the decimal. Yes, you last one? Decimal. Very nice. So, from single, full stop, either it's circle, either it's round, either it's clock or 0 as well as ring, whatever we are going to call, by putting some petals in it. Okay. What we are putting in it now? One dot and we are putting some petals in it. Okay. Now our mathematical form is getting changed into which form? See? Start. Yes, ma'am. So as we had seen in the beginning, it was just known by the names of clock, round, circle, 0, shunya, O, ring, sphere, point, decimal. But now, is it the same as we had considered in our very beginning before the class was started? In the beginning of our class, we had taken it as in a form of circle or round. Is it the same now? What we can say it as? Rangoli. Yes, we can even say it as a rangoli. Rangoli is also a form of art. You know it? Yes, ma'am. Rangoli बोले, इसे colorful बोले, design बोले, मेहंदी का design बोले, अगर in the form of साड़ी का design बोले, ये सारे के सारे तौर पे designs में ऐसे flowers use होते हैं. और ये सारे के सारे जिस भी टाइप में यूज होते हैं, ये सारे के सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं?
different box such as triangle, circle, rectangle, then we form different kinds of hexagon, pentagon. hexagon, pentagon, different types of structures. Okay. जब हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर जो हमारे कंपास बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, अदर इट्स राउंडर, ट्रायंगल, त्रिभुज, राउंडर, स्फीयर, सर्कल, जब हम उसको एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करते हैं एक ब्लैंक पेपर पे, तो क्या होता है, कुछ फिगर बन के आता है। और वो जो फिगर बन के आता है उसमें अगर हमने अच्छा सा कलर कर दिया तो वो किसका फॉर्म बन जाता है, आर्ट का फॉर्म बन जाता है। ओके, इन द सेम वे हमने ग्राफ तो सबने ही बनाया होगा। यस सर। ग्राफ सबने बनाया होगा। ग्राफ में क्या होता है, सेंटर पॉइंट 0 होता है। यस सर। राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है कि नेगेटिव नंबर होता है? पॉजिटिव। सिंगली यू हैव टू रिप्लाई यस यू पॉजिटिव नंबर। एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। वेरी गुड। सेम क्या पता, इन दिस फिगर यू कैन सी इट एज यू हैड कॉल्ड नाउ। 0 से आगे के साइड सारे के सारे नंबर्स किस में होते हैं, पॉजिटिव। 0 से लेफ्ट साइड कैसे होते हैं, नेगेटिव। अगर हमने कुछ भी फिगर बनाया तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, फिगर बनाने के बाद में जस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया, लाइनिंग किया एंड छोड़ दिया। बट लाइनिंग करने के बाद अगर हम उसे कुछ और फॉर्म करें, 3-4 और लाइन देके उसमें अच्छा सा कोई कलर कर दे, इंक्लूड कर दे, पुट कर दे या फिर फिल कर दे, तो वो कैसा दिखने लगेगा, आर्ट। वो भी ब्यूटीफुल आर्ट्स, जैसे नॉर्मल आर्ट्स क्रिएट होके नहीं आएगा, उसमें से कैसे आर्ट्स फॉर्म होके आएंगे, ब्यूटीफुल आर्ट्स फॉर्म होके आएगा। इन द सेम वे ये कैसा दिख रहा है, रंगोली जैसा दिख रहा है। और रंगोली भी दिख रहा है तो किस टाइप का दिख रहा है, हम ऐसे बोलेंगे नॉर्मली रंगोली बनाते हैं। रंगोली में किस टाइप का मैथ्स, कहाँ से मैथ्स, किसी का भी क्यूरी कैसा आएगा, अगर हमने फीमेल किसी से भी पूछा घर में जो हमारी मम्मी है या दादी है कि आपको पता है रंगोली में भी मैथ्स होता है, तो उनका पहला जवाब क्या होगा, नो। ऑब्वियसली रंगोली में कैसा मैथ्स है कि नहीं, बट रंगोली में भी मैथ्स होता है। और रंगोली किसके थ्रू बनता है, मैथ्स के ही थ्रू बनता है। ठीक है, अगर मैथ्स में हमने अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, उन सबको इंक्लूड किया रंगोली के फॉर्म में, तब जाके क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर शेप या कंस्ट्रक्शन बन के, फिगर बन के एंड में आता है। और अगर उसमें हमने कलर इंक्लूड कर दिया तब तो बेस्ट। यहाँ पे द इमेज शोज 12,000 सर्कल्स। इसमें टोटल जो सर्कल्स है वो कितने हैं, 12,000 सर्कल्स। 12,000 दैट मींस नंबर दैट मींस the center of kth circle is x k y k and the radius of the kth circle is r k। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने नंबर्स हैं, हमने जस्ट कंसीडर किया किस अल्फाबेटिकल लेटर से, k से। ओके, 1 3। तो जैसे यहाँ पे kth सर्कल इज r of k where x of k equals to, जो कि आप 10th में पढ़ेंगे, cos 14 pi r by 12,000। इन द सेम में जब इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया y of k से, तो साइन के फॉर्म में आंसर मिला। और जो हमारा r of k है वो कैसा मिल रहा है, टोटल फिगर 1/200 समथिंग हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है। दैट मींस उतना सर्कल, उतना सर्कुलेशन, उतने पेटल्स और उतना फॉर्मेशन हमने किया उतने राउंड में, तब जाके हमारा जो डायग्राम, जिसे आप रंगोली बोलो, डिजाइन बोलो या फॉर्मेशन बोलो, डायग्राम बोलो, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस सेम टॉपिक by using some new diagrams as well as some new figures. Okay. Now we are going to study our same topic with different diagrams as you all can see it clearly on our blackboard. Okay. So number system वो आपके 6th, 7th और 8th में आता ही आता है मैथ्स के सब्जेक्ट में। ओके, नंबर सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल अलजेब्रिक नंबर्स होते हैं, रैशनल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ये भी क्लियर होगा आपको। ओके, तो ये जैसे ऐसे फॉर्म किया हुआ है, तो इसमें क्या बताया गया कि ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। किसके पास है, नंबर सिस्टम में। बट अगर किसी में मैंने कलर पुट कर दिया तो ये किसका फॉर्म बन जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये है क्या, ऑलरेडी जो दिया हुआ है ये पूरा क्या क्लियर कर रहा है,
सा फॉर्म है? आर्ट्स का फॉर्म है, बट आर्ट्स में कौन सा शेप है? मैथ्स का शेप मतलब सर्कल बना है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या दिख रहा है? कौन सा शेप है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर? anyone who knows the answer just raise your hand. Anyone? Which shape it contains? Yes, you? Pentagon. Very good. In the same way as we had already seen it contains pentagon. Not only pentagon, hexagon, septagon, that all shapes can be included in it. क्यों? क्योंकि इसमें क्या सिर्फ 5 या 6 साइड नहीं है. छोटा है तो कम साइड है, बड़ा है ज्यादा साइड है. अगर उससे भी ह्यूज है तो उससे भी ज्यादा साइड्स, उससे भी ज्यादा कॉर्नर्स, उससे भी ज्यादा फॉर्मेशंस उसमें है. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जितने साइड्स होंगे, जितने कॉर्नर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नेमिंग फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट वन, व्हाट कंटेंट्स इज नोन एज बाय यू क्यूब. इन शॉर्ट इसे कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाता है मैथ्स के नेम में? यस, यू. सेकेंड वन, ट्रायंगल. वेरी गुड. सिट डाउन. जैसे कि आप सबको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? ट्रायंगल. बट ट्रायंगल जब हम नॉर्मली बनाते हैं तो हमें क्या लगता है कि 3 लाइन हमने खींच दिया, यहाँ से यहाँ लाइन खींचा, यहाँ पे एक लाइनिंग कर दिया, हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया. ओके, अब ट्रायंगल में किस टाइप का आर्ट? बट जब हम ट्रायंगल को डिटेल में देखने जाएंगे तो क्या होता है, एक एक पार्ट कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे से फॉर्म हो रहे हैं, उस वजह से कैसे जा रहे हैं, एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसे हम लास्ट में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. और अगर इसी में हमने कलर डाल दिया तो बनाने की जरूरत है? ऑलरेडी क्या हो जाएगा? मैथ्स इन आर्ट. सेम थिंग इज हियर. क्या है यहाँ पे? पहला सर्कल, एंड देन triangle, and then this 1 2 3 4 5 6. how many sides are in it? 6 sides. यानी कि इसमें क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने जो भी यूज किए हैं, ये सब किसकी हेल्प से बने हुए हैं? मैथ्स की हेल्प से. बट जब इसको लास्ट फॉर्म करने के बाद हमने इसमें कलर इंक्लूड किया तो ये क्या हो गया? सेम वे हियर. क्या है ये? कोई बताएगा? आपके वर्ड्स में कोई इसे डिस्क्राइब करना चाहेगा? एनी ऑफ यू? यस, यू. ठीक है, 2-3 लाइन में बोलना चाहेंगे इसे आपके लाइनिंग में? लाइंस के लिए बोल सकते हैं आप, इसको जैसा फॉर्म है उसके लिए बोल सकते हैं. मैम उसका जो शेप है वो मैथ से किया गया है, लेकिन जब उसको शेड किया गया ना तो वो आर्ट का फॉर्म ले रहा है. वेरी गुड. सेम थिंग हियर. पाई, ये आप सब जानते होंगे. पाई दैट मींस इट्स मच क्लियर कि ये मैथ्स है. अब पाई से ही हमने क्या किया है? सर्कुलेशन फॉर्म कर दिया है. ये देखा है आपने चक्का कैसा घूमता है? ये सारा का सारा नंबर के थ्रू क्या फॉर्म किया है हमने? सर्कुलेशन फॉर्म कर दिया. अब ये सर्कुलेशन जो फॉर्म किया है, इसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पे कलर वाले से लिखा होता तो कैसा दिखता है? इसने कुछ फॉर्म भी किया है, कोई शेप फॉर्म किया है. ये क्या है? सेम थिंग विद और माइंड. माइंड में क्या है? एक्चुअली ऐसे दिखता है हमें. जब माइंड का फॉर्मेशन यहाँ पे डायग्राम बनाया गया तो इसमें क्या क्या है? मैक्सिमम, पाई, प्लस, माइनस, ट्रायंगल, सबके सब चीजें इसमें इंक्लूडेड. अगर उसी को हमने कलर कर दिया, जस्ट हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ड्रॉ किया दैट मींस इट्स एक्चुअली आर्ट. ड्राइंग करना यानी कि हम जो लिखते हैं वो भी आर्ट्स होता है. पता है, सबकी हैंडराइटिंग एक दूसरे से अलग अलग होती है. वो क्या चीज है? आर्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फिगर. इसमें क्या दिख रहा है? ये क्या है? Triangle, circle. Anyone? Ma'am, road. You can reply it by standing at your own place. Ma'am, 2 triangle से एक स्क्वायर बनाए. ओके. अरे पिक्चर को कुछ डिस्क्राइब करो आपके वर्ड में. क्या क्या यूज हुआ है इस पिक्चर के लिए? Ma'am, maths के हाँ. नंबर, rectangle, square ओके. और shapes, circle. Ma'am, enough. Very good. Sit down. In the same way, in this diagram also or also in this figure, we can say it ऐसे सारे के सारे एक दूसरे से कैसे अलग अलग है. ये सब हमने किसके थ्रू बनाया है? ग्राफ के थ्रू बनाया है. मैथ्स में किसके थ्रू बनाया है? ग्राफ के थ्रू बनाया है. अब ग्राफ का फॉर्मेशन जैसे हमें नंबर मिला, अगर 3 नंबर मिला है तो हम उसके प्लस करके क्या बना सकते हैं? 3 नंबर को प्लॉट किया तो ट्रायंगल. 4 पॉइंट्स मिले उसको ज्वाइन कर. अब स्क्वायर में बना सकते हैं, रेक्टेंगल में बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों में कैसे पॉइंट्स होते हैं?
रिवॉल्व एंड रिवॉल्व हो रहा है राउंड एंड राउंड अगेन एंड अगेन। अब इसको एस बनाने के बाद में सर्कुलेशन क्रिएट करने के बाद में हमने क्या दे दिया, जैसे यहाँ पे आईज नोज हमने अलग से एक्सटर्नल ऐड किया है, सेम थिंग यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद में क्या फॉर्म किया है, यहाँ पे कलरिंग का यूज किया है। जब कलरिंग का यूज किया तो ये चीज कैसा हो गया, आर्ट। और स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो गया वो कैसा दिख रहा है, मच ब्यूटीफुल दिख रहा है। नेक्स्ट, ये जो फॉर्मेशन है कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में। आपने कभी किसी पोटर को मटकी या कुछ बनाते हुए देखा है? यस मैम। उसमें भी आर्ट्स होता है? यस मैम। होता है? यस मैम। मुझे फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा पोट बनाना है, मैंने इतना सारा मड लिया, इतना सारा मिट्टी लिया और इतने सारे मिट्टी से मेरे को इतना छोटा सा बनाना पॉसिबल है? नो मैम। बाकी सारे के सारे मड क्या होंगे, मिट्टी क्या होंगे, वेस्ट में जाएंगे। बट मुझे इतना छोटा सा मटकी बनाना है, मैंने थोड़े से ही मड लिए, तो क्या हो रहा है, छोटा बनेगा। ये जो कैपेसिटी मैंने मेजरमेंट किया कि मुझे छोटा बनाना है तो मुझे मड छोटा ही लेना चाहिए, तो ये जो मेजरमेंट मैंने किया किसके थ्रू किया, वेरी गुड। सेम थिंग इसमें क्या पता चल रहा है, सारे के सारे शेप्स का यूज किया है हमने। यस मैम। इन द सेम वे यहाँ पे भी आइस अलग शेप का है, फ्लावरिंग जो किया है लीव्स का वो अलग शेप का है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेमी स्क्वायर लिया है, सर्कल लिया है, ट्रायंगल लिया है, सबका यूज करके एक फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। और फिर क्या किया है, इन सबको जब ज्वाइंट किया है एक दूसरे के साथ में तो कैसा पिक्चर डेवलप हो गया है एंड में एक मैन का। ठीक है, नेक्स्ट वन सिंपल जो भी हमने बनाया है, अगर इट्स बकेट, दिस वन और द लास्ट वन, सब में क्या किया है हमने, कलर का यूज किया है। लिखा है, नॉर्मली हमने लिखा है, लिखने के बाद में कलर का यूज किया है। कलर का यूज करने के बाद वो जैसा पहले दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। सेम वे हियर, ये तो मच बेटर है, आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में कोई एक लाइन बोलेगा आप में से? यस यू गो अहेड। मैम इसमें ना लाइन ड्रॉस किए बहुत सारे, जिसके अंदर कलर फिल कर दिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने कोई डिजाइन बनाया है। वेरी गुड। हम 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं, लाइन एंड एंगल्स करके एक चैप्टर आता है हमारा। इसमें क्या प्योर लाइनिंग यूज किया गया और लाइनिंग में भी क्या किया है, कलर कर दिया। बट हम डिटेल में देखने जाए तो लाइनिंग में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि शेप आ रहा है, किसका शेप आ रहा है, शेप आ रहा है। यानी कि जब हमने उसको ज्वाइन किया तो कैसा फॉर्म हो गया, एक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आर्ट का डिजाइन फॉर्म हो गया। यस मैम। इन द सेम वे दिस स्ट्रक्चर आल्सो शोज द सेम मैक्ट्यूटर आर्ट। ठीक है, ये भी कैसा स्ट्रक्चर आर्ट करता है, एंशिएंट वाले जो फिगर्स हैं उसमें के एक फिगर ऐसा है। ठीक है, इसमें भी मैथ्स है, प्योर मैथ्स है। 1 2 3 4 5 6 कितने साइड से टोटल 6। डायमंड का फॉर्मेशन है। यस मैम। तो इसमें मैथ्स है। यस सर, हमने लाइनिंग से ज्वाइन किया तो क्या हो गया, 8। सेम थिंग ओवर हियर, सर्कल। जब ये सारे लाइनिंग को हमने कुछ को राउंड कर दिया और कुछ को ही रहने दिया, जो कि लाइन एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट थे उनको ही ऐसे वैसे छोड़ा। अब फिर अगर मैंने इसमें कलर यूज कर लिया या फिर शेडिंग यूज कर दिया तो फिर क्या हो गया, as well as in the same way triangle, circle and this pause button which is also known as in your YouTube channels. Over here this is also known as triangle. And in this which color is included mostly, कौन से कलर्स यूज किए, व्हाइट, पिंक, पर्पल। जस्ट लाइनिंग ही किया है, इसमें ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया गया। क्या क्या किया है, जस्ट लाइनिंग किया गया। बट लाइनिंग से क्या हो रहा है, इसको कलर के थ्रू लाइनिंग किया गया, तो ये कैसा दिख रहा है, आर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन सर्कल। क्या है, ये फिगर है। ठीक है, किसी का फेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट कैसा किया है, इसमें फेस का स्ट्रक्चर तो बनाया है लेकिन इन्वॉल्व है इसमें तभी लगे स्ट्रक्चर। आप अगर कोई पिक्चर क्लिक करते हो या फोटो लेते हो उसमें क्या होता है, पिक्सेल्स आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सेल्स आते हैं। इनफैक्ट वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे पिक्सेल्स अलग अलग रहते हैं। जब आप दोनों पिक्सेल्स या फिर सारे पॉइंट्स को एक साथ में, सारे पिक्सेल्स को एक साथ में ज्वाइन करते हो तब जाके एक परफेक्ट क्या बन के आता है, पिक्चर या फिर वीडियो कंटेंट लास्ट में आपको मिलता है। मैंने स्टार्टिंग किया था मैथ्स से, सिलेंडर, सिलेंडर, रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्यूब, हाफ स्फीयर, स्फीयर, कोन, पेंटागोनल, इरेगुलर, पेंटागोनल, 3D बॉक्स। दैट मींस जितने भी, इधर आइसक्रीम की अगर हम बात करें, ठीक है, आइसक्रीम का कोन सबने खाया होगा। कोन कैसा होता है, देखा मैथ्स में हम क्या करते हैं, सारे के सारे शेप्स यूज करते हैं और ये सारे शेप्स की वजह से हमारा मैथ्स कैसा है, मैथ्स का फॉर्मेशन होता है। बट जब यही सारे शेप्स को हमने
or the diagrams which you had already studied in our class. Okay? जो हमने हमारे क्लास में अभी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप दोगे सही से. रेडी? Yes, ma'am. स्टार्ट करें? Yes, ma'am. First fill in the blanks. Maths and arts are dash in a variety of ways. Who is going to reply this? Ma'am. Yes, you second one. Say it again. Very good. They are related in a variety of ways. Second question. Maths has itself been dashed as an art. Yes, last bench. Very good. Third question. Music and dance also involve dance. Music and dance also involves what? Who is going to reply this? Yes, last second bench. Mathematics. Very good. Now true or false? Okay. Focus on the question before raising your hands. Okay. Yes, ma'am. Let's begin it. Are you ready? Yes, ma'am. First question. Maths can be discovered in arts. Is it true or false? True. If you know answer, then you have to just raise your fingers for answering it. Okay? Yes, first bench. True. Very good. Next question. Maths is not present in music and dance. Is it true or false? Yes,